students, welcome to social science class. This chapter number 2 of your political science. You may also call it civics. Civics class 9th, chapter 2. Chapter, as you see, is titled as Constitutional Design. We noted in previous chapter that in democracy the rulers are not free to do what they like. There are certain basic rules that citizens and the government have to follow. All such rules together are called constitution. As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of the citizens, the powers, the government, and how government should function. See, students, what it says. It says that unlike the olden times, where rulers like kings used to do what they wanted, in a democracy, rulers are bound with certain laws. जो रूलर्स होते हैं वो कुछ अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, वो और उनके जो सब्जेक्ट होते हैं सिटीजन्स, उन सब को मिलके क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को और सिटीजन्स को मिलके एक कानून के दायरे में रहना पड़ता है, कानून के मुताबिक काम करना होता है। और ये कानून जो बने होते हैं वो जो कवानीन होते हैं उनकी सेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कंट्री के लिए, वो कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, उसके मुताबिक ही काम काज चलाया जाता है और गवर्नमेंट को भी और सिटीजन्स को भी उसको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह से सरकार चलती है। इन दिस चैप्टर वी आस्क some basic questions about the constitutional design of a democracy. Why do we need a constitution? How are the constitutions drawn up? Who designs them and in what way? What are the values that shape the constitutions in democratic states? Once a constitution is accepted, we can make changes later as required by the changing conditions. Let's see. इस चैप्टर में हमने जो देखना है, कुछ ऐसे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे, जैसे Why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस को कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशंस की वैल्यूज़ क्या हैं डेमोक्रेटिक स्टेट में? अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बना है तो क्या वक्त के साथ ज़रूरत के मुताबिक उसमें चेंजेस की जा सकती हैं? One recent instance of designing constitution of the democratic state is that of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made and what its functional values are and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. हमने जो पढ़ना है, हमने जो देखना है, वो ये है कि इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका का जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास इस चैप्टर के मुताबिक, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पे आएंगे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को भी समझेंगे।
Democratic constitution in South Africa. I have fought against white domination. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but it needs, be it, is an ideal for which I am prepared to die. This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. He and seven other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Islands. The first few lines that we read are the words of South African President Nelson Mandela. He says, I have fought against white domination, I have fought against black domination. हर किस्म की डोमिनेशन के ख़िलाफ़ मैंने लड़ा है और फिर डेमोक्रेसी के लिए मेहनत की है। डेमोक्रेसी का आइडियल जो था उसको सामने लाने के लिए मैंने जंग लड़ी है। और फिर नेल्सन मंडेला के बारे में हमें बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला को ट्रीजन की चार्जेस पे गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और उस बुनियाद पे उसको और उसके साथ साथियों को जेल भेज दिया गया 1964 में। जेल जब उसको भेजा गया तो उस वक्त नेल्सन मंडेला ने 28 साल अफ्रीका की बहुत ही ख़तरनाक जेलों में वक्त गुजारा जो रॉबन आइलैंड्स में हैं। और जो नेल्सन मंडेला की इम्प्रिजनमेंट थी वो इसलिए आई थी क्योंकि नेल्सन मंडेला और उसके साथियों ने अपार्थाइड गवर्नमेंट जो थी, वाइट सुपरमेसी, जो सब गोरी चमड़ी वाले लोग जो थे ब्लैक स्किन लोगों के ख़िलाफ़ थे, उस मामले पे इन्होंने ये उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई थी उसकी वजह से इनको ये ट्रीजन चार्जेस लगाई गई थी। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कैसे हुई? Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa during 17th and 18th centuries. The trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The native people of the South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. अपार्थाइड सिस्टम जो है एक रेशियल सिस्टम था, नस्ल परस्ती वाला सिस्टम था, डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम था जो सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए यूनिक है। वाइट स्किन पीपल जो थे, अंग्रेज़ जो यूरोप से गए थे, जाके साउथ अफ्रीका पे कब्ज़ा किया था ट्रेडिंग सिस्टम में, जैसे इंडिया पे किया वैसे ही वहाँ पे भी किया था, लेकिन वहाँ पे सेटल हो गए और वहाँ पे हुकूमत करनी स्टार्ट कर दी। और जो वहाँ के नेटिव लोग थे, जो वहाँ पर के बसनीक लोग थे, वो ब्लैक कलर के हैं अफ्रीका के, उन पे हुकूमत करनी स्टार्ट कर दी, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दी। यही सिस्टम जो था इसको अपार्थाइड सिस्टम कहा गया। चमड़ी के रंग की बुनियाद पे लोगों को बांटा जा रहा था।
Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored, and people who migrated from India. The white rulers created all non whites as inferiors. The non whites did not have voting rights. वाइट लोग पहुंच गए, गोरे अंग्रेज़ पहुंच गए, कब्ज़ा कर लिया अफ्रीका पे। अफ्रीका के लोग जो हैं उनको ब्लैक्स नाम दिया है, वो ब्लैक हैं। बाकी नस्लों के लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं, गुंदमी रंग के हैं, कोई दूसरे रंग के हैं, कोई इंडिया के लोग भी वहाँ पे गए हुए थे। बाकी लोगों की कैटेगरी को नाम दे दिए या कलर्ड पीपल। खुद वाइट, अफ्रीका वाले ब्लैक, और जो बाकी नस्लों के लोग हैं उनको कलर्ड पीपल कहा गया। जो वाइट पीपल हैं वो माने जाते हैं सुपीरियर सबसे, और जो बाकी लोग हैं कलर्ड पीपल और ब्लैक पीपल जो हैं वो इन्फीरियर माने जाएंगे, और उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, वोट देने का हक नहीं होगा। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools. Public toilets were all separate for the whites and blacks. This was called segregation. They could not even visit the churches where the whites worshipped. Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment. फिर क्या हुआ इस सेपॉथिट सिस्टम में? एक तो वोट देने का हक जो है वो ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल को नहीं है, लेकिन ये जो जुल्म जो सबसे ज़्यादा था वो ब्लैक पीपल पे था। वाइट पीपल जो हैं विन एरियाज़ में रह रहे हैं वहाँ पे उनको जाने का हक नहीं है। उनको ट्रेन्स में, बसेस में, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स और पब्लिक टॉयलेट्स तक सब उनके लिए अलग अलग। जहाँ पे वाइट हैं लोग जाएंगे वहाँ पे ब्लैक नहीं है। और इस सिस्टम को कहा गया था सेग्रीगेशन, जो सेपरेट किया गया, ब्लैक के लिए बिल्कुल अलग, हर चीज़ अलग, वाइट के टच में भी नहीं आएंगे। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस। चर्चेस में इबादत के लिए नहीं जा रहे थे, ईसाई लोग हैं ये, चर्चेस में इबादत के लिए नहीं जा सकते हैं। वेयर द वाइट्स वर्शिप ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस। इनको एसोसिएशंस बनाने का भी हक नहीं था। कोई एसोसिएशन नहीं बनेगी, कोई जुलूस जलसा नहीं होगा, कोई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वाइट लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा। Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. 1950 से जो ब्लैक पीपल लोग थे, कलर्ड पीपल लोग थे और जो इंडिया से किए हुए लोग थे, इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के ख़िलाफ़, नस्ल परस्ती वाले सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। They launched protest marches and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many workers' unions and Communist Party. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके दायरा कार में रह के ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी और आवाज़ उठाने की जो पॉलिसीज़ थी सेग्रीगेशन के ख़िलाफ़ और अपार्थाइड के ख़िलाफ़ चालू हो गई। और इसमें बहुत सारे वर्कर्स थे, यूनियन से, कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल हो गई। मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइंट दी ANC। सेंसिटिव ज्वाइंट वाइट्स भी थे, जिन लोग वाइट कलर्ड पीपल में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर इंसाफ की थोड़ी सी रत्ती थी, वो भी समझते थे कि ये सिस्टम गलत है, वो भी इनके साथ शामिल हो गए अपार्थाइड को अपोज करने के लिए, एंड प्लेड ए लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing, and killing thousands of black and colored people.
बहुत सारे मुल्क जो थे वो भी इस अपार्थाइड सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हुए, उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। लेकिन जो वाइट सुप्रीमेसी थी, उन्होंने रेसिस्ट लोग जो थे उन्होंने ये डिटेन करना, लोगों को बंद करना, टॉर्चर करना, मारना ये जारी रखा। और ब्लैक कलर्ड पीपल जो है उनके ख़िलाफ़ जो है हमेशा लड़ाई जारी रखी।